Hello dear students, today Maths Part 2, Chapter number 2, Sequences and Series. Exercise 2.5. In exercise 2.5, you have completed question number 1, all the parts. Now, question number 2. Find the sum to infinity of the following AGP, that is arithmetico-geometric progressions. In the previous lecture, you have completed find the sum to n terms, you have find the SN for AGP, but today in question number 2, you have to find sum to infinity of the following AGP, that is arithmetico-geometric progressions. Your sub question first is 1, 2 by 4, 3 by 16, 4 upon 64 and so on, they are in AGP. So first we have to decide this series combined for AP and GP. So first we should separate it, these terms in AP and GP. That is, 1 can be expressed as 1 into 1, 2 by 4 as 2 into 1 upon 4, 3 upon 16 as 3 into 1 upon 16, 4 upon 64 as 4 multiplied by 1 upon 64 and so on. Now taking first product of each term in the given AGP, since 1, 2, 3, 4, first product, that is 1, 2, 3, 4 and so on. So here 1, 2, 3, 4 and so on are in AP with first term, that is A equal to 1 and a common difference D equal to 2 minus 1, that is 1. Because common difference D is T2 minus T1, that is 2 minus 1 becomes 1. And first term A equal to 1, that is this one, A equal to 1. Now, second product of each term. So, what is second product of each term? Here it is 1, it is 1 by 4, it is 1 by 16, here it is 1 by 64 and so on. So, we should write here 1, 1 by 4, 1 by 16, 1 by 64 and so on are in GP, that is geometric progression. What is the common ratio of this geometric progression? We see that here it is T2 upon T1, that is 1 by 4 upon 1 and it becomes R equal to 1 upon 4 upon 1, that is 1 upon 4. So we need three terms. First term of AP A equal to 1, common difference of AP D equal to 1 and common ratio R equal to 1 upon 4 for GP. Now using the formula, this formula for sum to infinity of AGP. So S infinity equal to A upon 1 minus R plus D into R upon square of 1 minus R. This is the formula for infinite terms of arithmetico-geometric progressions, or you can say arithmetico-geometric series or arithmetico-geometric sequences. So using this formula S infinity, a sum of infinite terms denoted by S infinity equals A upon 1 minus R plus dr upon square of 1 minus R. Now substituting the values, value of A is 1 and value of R is 1 by 4. So this will be 1 upon 1 minus 1 by 4 plus D into R, that is 1 multiplied by 1 upon 4 upon 1 minus 1 by 4 whole square. And simplifying it, we get, see this one, 1 minus 1 by 4, here it becomes 4 1 ja 4 minus 1, that is 3 upon 4. So 1 upon 3 upon 4 and this gives 4 upon 3. This is 4 upon 3 plus 1 into 1 upon 4, that is 1 upon 4 only, but here it is 1 minus 1 by 4 becomes 3 upon 4 and square of 3 upon 4 is 16 upon 9. So this will be, here it is square of 3 upon 4, that is 9 by 16, but its reciprocal here becomes 16 by 9 into 1 by 4 here, that is upon 4. So simplifying these two terms, we get 4 upon 3 plus 16 upon 9 into 4 and it goes by 4. So चलो यहाँ cancel भी कर देते हैं, 4 4 जा 16. So this will be 4 upon 9. Therefore S infinity,
sum to infinite terms, 4 by 3 as it is, plus its simplest form is 4 upon 9. Now LCM of 3 and 9 is 9. So this will be 12 plus 4 entire upon 9. That is 16 upon 9. Therefore, S infinity for the given sequence is equal to 16 upon 9. तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि अगर ये सीक्वेंस को हम लोग कंटिन्यूअस ऐसे लिखते जाएं तो ये सीक्वेंस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लिख करके राइटिंग में हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर सकते, बट यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स जो यहाँ पर लिखे गए और जो हम नहीं लिख सकते इन फ्यूचर, वो सभी टर्म का सम क्या होगा, ओनली 16 अपॉन 9। तो ये एक अच्छा फार्मूला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फार्मूला है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कॉलेज एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एस इन्फिनिटी इक्वल्स ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस dr upon 1 minus r whole square, and we get sum of 1, 2 by 4, 3 by 16, 4 upon 64 and so on. This is AGP, that is arithmetical geometric progression. So sum of all these terms is 16 upon 9 by using this formula. Now see question number 2. So in second sub question, given sequence is 3, 6 upon 5, 9 upon 25, 12 upon 125, 15 upon 625 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस भी कैसा सीक्वेंस है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है जिसको हम लोग कंटिन्यू ऐसा लिखते चले जाएंगे और अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही है। तो पहले तो सबसे पहले हम इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें एपी क्या है और जीपी क्या है। इन सभी टर्म्स को क्लियर करते हुए पहले उनको सेपरेट करना होगा, सेपरेट करने के बाद फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So here 3 can be written as 3 into 1, 6 upon 5 as 6 multiplied by 1 upon 5, 9 upon 25 as 9 multiplied by 1 upon 25, 12 upon 125 as 12 into 1 upon 125, here 15 into 1 upon 625 and so on. Since 3, 6, 9, 12, 15 and so on are in an AP, तो अब देखो ये टर्म AP में है, कैसे मालूम पड़ेगा कि AP में है या नहीं है? यू नो वेरी वेल, हम लोगों को कॉमन डिफरेंस से चेक करना चाहिए। तो आइए एक बार चेक करके देख लेते हैं। 6 minus 3 equal to 3, 9 minus 6 also 3, 12 minus 9 also 3, 15 minus 12 also 3. So the differences between these two consecutive terms are same, hence it is an AP. तो इसमें अगर AP में है तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है अभी हम लोगों ने माइनस किया, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, तो दैट वन इज D इक्वल टू 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 3। अब देखो लकीली यहाँ पर A इक्वल टू 3 भी है और कॉमन डिफरेंस भी 3 है। यहाँ पर भी क्या था, AP के लिए A इक्वल टू 1 और D इक्वल टू 1, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दे मे बी डिफरेंट, दे मे बी इक्वल। तो चलिए आइए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टर्म ऑफ AP 3 and common difference D equal to also 3. Now second product of each term 1, 1 upon 5, 1 upon 25, 1 upon 125 and so on. So since 1, 1 upon 5, 1 upon 25, 1 upon 125, 1 upon 625 and so on are in GP. Or you can write also here 1, 1 upon 5, 1 upon 5 square, 1 upon 5 cube, 1 upon 5 raised to 4 and so on. So since r equal to 1 upon 5 upon 1, that is 1 upon 5. So this is the common ratio. ये है common ratio यहाँ पर. Now using S infinity formula. Which formula? S infinity for arithmetico-geometric progression. देखो arithmetico-geometric progression क्या है, ये यहाँ पर लिख भी सकते हो. They are in AGP. तो S infinity equal to A upon 1 minus R plus D into R upon 1 minus R square. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट। सो इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 5 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 होल स्क्वायर। नाउ 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 5 बिकम्स व्हाट? सो इट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 बाई 4। अब देखो यहाँ पर आता है 4 अपॉन 5, तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 3 इंटू 5 बाई 4। सो वी शुड राइट इन द फर्स्ट टर्म 3 into 5 upon 4. For the second term, here it is 1 minus 1 upon 5, that is 4 upon 5. Square of 4 upon 5, 16 upon 25.
तो हम लोग यहाँ पर अगले टर्म में क्या लिखेंगे इसको देखो, 3 इंटू 1/5 दैट इज 3/5 अपॉन हियर इट इज 16/25, so becomes its reciprocal 25/16. Now simplifying these two terms, here it is 3 into 5 that is 15/4. So we should write here s infinity equal to 15/4 plus, now simplest form of these two terms, here it is 5 5 ja 16, sorry 5 5 ja 25/16. So here it is 5 5 ja 25, cancel कर दिया तो 5 into 3 becomes 15, so it is 15/16. So therefore s infinity equal to 15/4 plus 15/16. ये टर्म यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 16 है तो टाइमली यहाँ पर आ जाता है कभी कभी 25/16 इंटू 3/5, ये सिंप्लीफाई कर लिया, इट बिकम्स 15/16. So we see that here LCM of 4 and 16 is 16. So we get here 60 plus 15/16 and it is equal to 75/16. चाहे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं या 75/16 भी लिख करके छोड़ सकते हैं. तो therefore sum of infinite arithmetico-geometric progression means for the second question 3, 6/5, 9/25, 12/125, 15/625 and so on, they are as infinite AGP is equal to 75/16. Sum of all these terms up to infinity, so s infinity equal to 75/16. Now taking third question. Dear student, if you are new on my channel, so you should subscribe the channel first and press the bell icon, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलती जाएगी और कोई भी क्वेश्चन को सर्च करने में, प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. हाँ, जो भी स्टूडेंट अभी न्यू है और अगर उनको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लास्ट में देखेंगे एक लिंक प्रोवाइड की गई है, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही वो लिंक फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाएगी, तो वहां से फार्मूले को प्रैक्टिस कर सकते हो, पढ़ सकते हो. और अगर कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आइए अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं. हियर इट इज 1 -4/3, 7/9, -10/27 एंड सो ऑन. तो ये भी एक क्या है, एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. नाउ एक्सप्रेस इट आफ्टर एक्सपैंडिंग. हमें क्या करना है, एक्सपैंड करके इसमें एपी एंड जीपी के टर्म्स को सेपरेट करना होता है. तो पहले हम इस अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के एपी और जीपी के टर्म को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सपैंड करते हैं. तो आइए, दैट इज 1 as 1/1, that is 1 into 1. -4/3 can be written as 4 into -1/3. 7/9, 7 into -1/3 होल स्क्वायर. क्योंकि देखो -1/3 होल स्क्वायर क्या होगा, 1/9, और 7 इंटू 1/9 बिकम 7/9. फिर से ये आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये -1/3 है, इसके लिए यहाँ पर इसको भी -1/3 के फॉर्म में लिखना बेटर है. तो हमें सभी टर्म का जो कॉमन रेशियो आने वाला है वो सेम मिलेगा. आइए आगे चलते हैं फिर यहाँ पर आगे. अब देखते हैं यहाँ क्या है टर्म आगे का. तो इट इज, अब नेक्स्ट वन है -10/27. तो -10/27 कैन बी रिटन एज 10 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 होल क्यूब एंड सो ऑन. इसी तरह से जो भी टर्म होंगे हम यहाँ पर इसको लिखते जाएंगे. तो वी सी दैट फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच टर्म अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, 1, 4, 7, 10 एटसेट्रा. तो ये सभी टर्म को कलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि हमें जो टर्म मिलते हैं कि since 1, 4, 7, 10 and so on are in an AP, arithmetic progression में हैं. Here A equal to 1, first term A equal to 1 and D common difference D equal to 4 minus 1 equal to 3. तो ये D equal to 4 minus 1 3 है और यहाँ पर A equal to 1 है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, since 1 minus 1/3 -1/3 होल स्क्वायर -1/3 होल क्यूब आर इन जीपी, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करते हैं.
सिंस r इक्वल टू -1/3/1, देखो r इक्वल टू -1/3/1, इट इज इक्वल टू -1/3, मतलब यहाँ पर हमारा T2/T1 है, तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 1 -1/3 -1/3 होल स्क्वायर -1/3 होल क्यूब, दे आर इन जीपी, और इनका कॉमन रेशियो आ गया -1/3। और जो एपी के टर्म्स हैं उसमें फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1 एंड d इक्वल टू 3। अब क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है, सम टू इनफाइनाइट टर्म्स। तो यूजिंग द फार्मूला s इन्फिनिटी फॉर द अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो s इन्फिनिटी हम लोगों ने बहुत बार लिखा है, जीपी के लिए भी लिखा है और अभी एजीपी के लिए भी लिख रहे हैं, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए भी। तो वहां पर दोनों फार्मूले डिफरेंट हैं और स्टूडेंट को फार्मूला लिस्ट में जा करके वो दोनों फार्मूले का क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर किसी स्टूडेंट को फार्मूला नहीं मालूम है, फार्मूले के बारे में नहीं मालूम है, क्योंकि उस लिस्ट में मैंने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और सम ऑफ AGP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AGP एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ AGP, और इसके बाद समेशंस फार्मूले, दैट इज सिग्मा नोटेशन के फार्मूले जो हैं वो सभी उस लिस्ट में दिए गए हैं। तो उस लिस्ट में जा करके हम लोगों को वो सब फार्मूला कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जिस किसी स्टूडेंट को फार्मूले के बारे में नॉलेज नहीं है, नहीं मालूम है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करते ही फार्मूला लिस्ट पर पहुंच जाओगे। ओके, आइए फार्मूला यूज करते हैं, S infinity for AGP, that is S infinity for arithmetico geometric progression। तो S infinity equal to a upon 1 minus r plus d into r upon square of 1 minus r। Using this, now substituting the values, so it is equal to 1 upon 1 minus -1 by 3 plus 3 into -1 by 3 upon 1 minus -1 by 3 होल स्क्वायर। तो ये टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद देखो यहाँ पर मिलता है 1 प्लस 1/3, दैट इज 4/3, तो इट इज इक्वल टू 1/4/3। और यहाँ पर आता है 3 इंटू -1/3, तो 3 गॉन, ओनली -1 रिमेनिंग। हियर इट इज 1 माइनस 1/9, क्योंकि यहाँ पर 1/3 सॉरी 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1/3 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 1 दैट इज 4/3, तो ये हो जाता है 16/9, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 आता है, तो इट इज 1/4/3 माइनस 1/16/9। ओके, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, एंटायर पार्ट का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया 16/9। अब इसके बाद ये 1/4/3 इज 3/4 एंड 1/16/9 इज 9/16, तो 3/4 माइनस 9/16। अब देखो इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 16 इज 16, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इंटू 4 इंटू 4, तो हो गया 4 3 जा 12, क्योंकि डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, तो 12 माइनस 9 एंटायर अपॉन 16, तो ये हो गया पूरा 12 माइनस 9 एंटायर अपॉन 16, तो इट इज इक्वल टू 3/16। आइए एक बार वापस से देख लेते हैं इसका क्या है फिर से क्वेश्चन के बारे में। सिंस 1 माइनस 4/3 7/9 माइनस 10/27 एंड सो ऑन is a arithmetico geometric progression. So separating the AP and GP terms in the product form, we get here 1 into 1, 4 into -1/3, 7 into square of -1/3, 10 into cube of -1/3 and so on. Since first product of each term are 1, 4, 7, 10 and so on in an AP. अब इसके बाद इसमें फर्स्ट टर्म a equal to 1 and common difference 4 minus 1 that is 3. Since 1 -1/3 -1/3 whole square -1/3 whole cube are in GP, that is geometric progression, और इसका common ratio है r equal to T2/T1 that is -1/3. Using the formula S infinity equal to a upon 1 minus r plus d multiplied by r upon square of 1 minus r. Substituting the values of a, r and d, we get 1 upon 1 minus -1/3 plus 3 multiplied by -1/3 upon square of 1 minus -1/3. Here it is simplest form of first term 1/4/3 and simplest of second is 1/16/9. So therefore S infinity equal to
अब देखो इसका रेसिप्रोकल किया तो यहाँ आ गया 3/4 और यहाँ पर ये टर्म को हमने मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा तो हो गया 9/16। इसके बाद इसको भी 16 बनाने के लिए इंटू 4 किया तो ये हो गया 12/16। तो 12/16 माइनस 9/16 बिकम्स 12 माइनस 9 एंटायर अपॉन 16 एंड इट इज इक्वल टू 3/16। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो है 3/16। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद अब हमारे पास जो अगला एक्सरसाइज आने वाला है 2.6, उसमें हम लोग समेशन, सिग्मा नोटेशंस और बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉलेज एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस किसी भी सीईटी एग्जाम के लिए और जेईई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो किसी भी स्थिति में इसके पहले के बताए गए सभी फॉर्मूले को अच्छे से प्रिपेयर करना है और स्पेशली अभी जो कमिंग एक्सरसाइज है उसके लिए हमें समेशन फार्मूला जो कि हमने अपने फार्मूला लिस्ट में प्रोवाइड किया है, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लास्ट में देखोगे एक लिंक प्रोवाइड की गई, उधर लिखा गया फार्मूला लिंक। तो वो लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे यू विल गेट फार्मूला, इमीडिएटली फार्मूले पर पहुंच जाओगे। तो इतने आसान तरीके से फार्मूले पर पहुंचना है। तो अगर फार्मूले को रिवाइज करके रखोगे तो कमिंग वीडियो या कमिंग लेक्चर जो रहेगा बहुत अच्छे से समझ सकते हो और उसमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ट्रिकी क्वेश्चंस को देखने के लिए और कमिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।